Hello guys, so let's continue with our revision for PGBP. In the first part of our revision lecture, we've covered charging section 28, the computation method to find out the taxable business income and all the expenses which are allowed as a deduction. Now what we are getting into are all those expenses which are not allowed as a deduction, expenses जिनका deduction income tax act आपको permit नहीं करता. Now if these expenses have been debited to the P&L account, they are already part of the P&L account because as per accounts you've debited them as per your accounting standards. But there is something which is not correct, there is something which is strange with these expenses. So income tax act is telling you we will not allow a deduction of these expenses, so add it back to your net profit. But of course, if these expenses are not debited only to the P&L account and they are to be disallowed as per income tax, you've already given the correct treatment in accounts as well as tax. Your accounting treatment and tax treatment matches, so you don't need to do anything. Okay. Advertisement expenses in relation to a political party. Now here the section is very simple. It is telling you okay, you will not get a deduction of any advertisement expense that you pay to a political party. You will not get a deduction of any donation or any contribution that you are giving to a political party. While you compute PGBP income, you will not get a deduction because you are getting a deduction under section 80 GGB, under section 80 GGC. You are getting these deductions, and if you are getting the deductions under those two sections, they are the deductions which are allowed to you from gross total income. इसका मतलब ये हुआ ना कि पीजीबीपी कंप्यूटेशन में these expenses will have to be added back. Advertisement expenses that I pay to political party, they will have to be added back into the P&L account, into the net profit, because deduction मिलेगा but from gross total income मिलेगा. हाँ, 80 GGB, 80 GGC tell you that no deduction shall be allowed if you make a payment by way of cash. And one extra point that is worth mentioning, by chance if you are following the default tax regime, then in very simple words I would say something like this: section 37 to be the section that we are currently studying, that is definitely applicable, but 80 GGB or 80 GGC, they are not applicable. These two sections will not apply, which means in the default tax regime, you will neither get a deduction from PGBP nor get a deduction from gross total income. हाँ, if you are paying tax under the opt-out regime, so you will get a deduction under section 80 GGB, 80 GGC, the opt-out regime में. 37(2)(b) is applicable in both the cases. 37(2)(b) का disallowance in PGBP will apply in both the regimes. 80 GGB and 80 GGC का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर आप ऑप्ट आउट रेजिम में टैक्स पे कर रहे हो. सेक्शन नंबर 38, assets which are not exclusively used for business or profession, which means they are used for business purpose also and personal purpose also. So income tax officer will decide a certain proportion, that this much proportion will be treated as business expense and this much will be treated as personal expense, और जो personal expense का component होगा he will disallow. Which expenses is he going to disallow? Section number 30, section number 31, section number 32. What is section number 32? Depreciation. What is section number 30? Building से related rent, municipal taxes, repairs, insurance premium. What is 31? Machinery, plant, furniture का repairs and insurance premium. अगर एसेट दोनों पर्पस के लिए यूज हुआ है तो एक रीजनेबल एस्टिमेट किया जाएगा, दिस मच परसेंटेज इज ट्रीटेड एज पर्सनल एंड वो पर्सनल एक्सपेंस है करके डिसअलाउ हो जाएगा. सेक्शन 40, ओके, अ लेंथी सेक्शन, मेनी स्मॉल थिंग्स टू पे अटेंशन हियर. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद समथिंग स्मॉल. सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज नंबर 3, इफ यू आर पेइंग सैलरी outside India, or if you are paying salary to a non-resident, and what is the default that you've committed? You've committed a TDS default. What do you mean by TDS default? Tax is not deducted at source, or you have deducted it but not deposited it. Then such amount shall be disallowed. Such amount, which means 100% of your salary expense shall be disallowed under the head PGBP. And a key thing to remember, एक बार ये सैलरी डिसअलाउ हो गई तो ये वापस अलाउ नहीं होने वाली. इट इज अ परमानेंट डिसअलाउंस.
So suppose I deducted tax but did not pay that tax to the government, then this salary gets disallowed. Now 2 years later or 1 year later, if I go and deposit that TDS with the government, the disallowed amount is not going to be allowed as a deduction. ये एक बार disallow हो गया तो हो गया, which means as an employer, if you are paying salary outside India or if you are paying salary to a non-resident, you will have to be very careful. टैक्स डिडक्ट करो और टैक्स टाइम पे डिपॉजिट कर दो तो ही एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, वरना डिसअलाउ होगा और एक बार डिसअलाउ हुआ तो परमानेंटली डिसअलाउ हो गया. ओके, दिस वाज 40A सब क्लॉज नंबर 3. नाउ टॉकिंग अबाउट 40A सब क्लॉज नंबर 2. इतना सारा सब क्लॉज पे फोकस मत करना, 40 इंटू ब्रैकेट स्मॉल a याद रख लोगे तो बहुत है. इफ यू रिमेंबर द सब क्लॉज तो वंडरफुल, लेकिन कुछ नहीं तो 40 इंटू ब्रैकेट क्लॉज a लिख लेना, दैट इज इनफ. टैक्सेस ऑन इनकम. अब टैक्सेस ऑन इनकम इज बेसिकली इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इज अ पर्सनल लायबिलिटी. तुम पीजीबीपी करो या पीजीबीपी ना करो, बिजनेस प्रोफेशन इनकम हो या ना हो, इनकम टैक्स तो वैसे भी भरना पड़ेगा. यू पे इनकम टैक्स ऑन अदर इनकम्स ऑल्सो ना, नॉट जस्ट बिजनेस. So taxes on income is a business related expense? No. It is not a business related expense. अरे business नहीं भी हुआ तो भी ये टैक्स तो भरना पड़ेगा. So it is not going to be allowed as a deduction. They have clarified कि obviously जब हम tax word बोलते हैं तो it not only includes the tax as per slab rate or flat rate or tax as per special rates, it will also include surcharge, it will also include health education cess. तो पूरा जो टैक्स पेएबल है इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस, वो पूरा का पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा. एक छोटा सा कंपैरिजन किया है मैंने, इनकम टैक्स विज़ जीएसटी. इनकम टैक्स इज अ पर्सनल लायबिलिटी, whereas GST stands for goods and service tax. मतलब this is a tax when you are selling goods, this is a tax when you are providing services. तो ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस हो गया. इनकम टैक्स तो भाई ना प्रोविजन अलाउ होगा ना एक्चुअल पेमेंट अलाउ होगा. इनकम टैक्स पे अगर इंटरेस्ट पे करोगे, रिटर्न लेट फाइल किया, एडवांस टैक्स बराबर से नहीं भरा, तो इनकम टैक्स इटसेल्फ इज डिसअलाउड, तो उस पर जो इंटरेस्ट भरोगे वो भी डिसअलाउ हो जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट में पेनल्टी भरा मतलब तुमने कुछ गलत किया है, इनकम छुपाने का कोशिश किया है, कोई कंपलसरी चीज़ फॉलो करनी चाहिए थी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, वो तुमने फॉलो नहीं करी है. पेनल्टी इज फॉर ब्रेकिंग द लॉ. पेनल्टी का डिडक्शन तो वैसे भी नहीं मिलता, सिर्फ इनकम टैक्स क्या किसी भी कानून में पेनल्टी लगेगा, उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला. अगर इनकम टैक्स का रिफंड मिला, इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम. ये तो मेरा ही पैसा है जो मुझे वापस मिला है, इस पे टैक्स लगने ही नहीं वाला. मैंने 1,85,000 का इनकम टैक्स भरा था, बट नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग कि तुमने ना 25,000 ज्यादा भरा था, तो रोनक ये लो तुम्हारा 25,000 रुपीज इनकम टैक्स रिफंड. दैट इज माई मनी कमिंग बैक टू मी. इट्स नॉट एन इनकम ओनली फॉर मी, इट्स नॉट टैक्सेबल. लेकिन इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा. दैट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट आई एम गेटिंग एंड दैट कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर एनी ऑफ द 4 हेड्स. ना वो सैलरी है, ना वो रेंट इनकम है, ना मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है इसलिए ये इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई कैपिटल एसेट बेचा है. तो पहले 4 हेड्स में कवर नहीं होता, तो 56 सबसेक्शन 1 के हिसाब से लास्ट हेड में कवर हो जाएगा. तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज टैक्सेबल, इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट टैक्सेबल. मतलब कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय इनकम टैक्स रिफंड आया 63,000 और फिर लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड से 7,000. तो जब पीजीबीपी सॉल्व करोगे तो पीजीबीपी करते वक्त नेट प्रॉफिट माइनस 63,000 माइनस 7,000, बट अंडर द हेड अदर सोर्सेज यू विल ओनली इंक्लूड 7,000 रुपीज. 63,000 तो टैक्सेबल है ही नहीं. सो इन शॉर्ट, इनकम टैक्स का ना प्रोविजन अलाउ होगा ना एक्चुअल पेमेंट अलाउ होगा. इनकम टैक्स पे इंटरेस्ट पे किया वो अलाउ नहीं होगा, इनकम टैक्स पे पेनल्टी पे किया वो अलाउ नहीं होगा, इनकम टैक्स का रिफंड मिला टैक्सेबल भी नहीं होगा. इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अब इसको कंपेयर करो विथ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो तो बिजनेस का एक्सपेंस है. लेकिन 43B का लेक्चर याद करो. 43B में बोला था एनी टैक्स ड्यूटी सेस दैट आई एम सपोज टू पे टू द गवर्नमेंट,
ऐसा कोई एक्सपेंस जिसका डिडक्शन मुझे मिलने वाला है, जीएसटी इज एन एक्सपेंस जिसका डिडक्शन मिलेगा लेकिन पेमेंट बेसिस पे, तो जीएसटी का प्रोविजन डिसअलाउ कर देंगे, प्रोविजन। लेकिन जब मैं पे करूंगा तो डिडक्शन मिलेगा। अगर जीएसटी का डिडक्शन मिलता है तो जीएसटी पे जो इंटरेस्ट पे करते हो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। जीएसटी लेट पे किया इसलिए उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो इट्स लाइक आई एम कॉम्पेंसेटिंग द गवर्नमेंट, आई एम कॉम्पेंसेटिंग द गवर्नमेंट, इट इज कॉम्पेंसेटरी इन नेचर। गवर्नमेंट मुझको बोल रही है तू लेट भरा ना, चलो अब उस पर इंटरेस्ट भर दे। अब जीएसटी ही अलाउड है एज अ डिडक्शन तो उसका इंटरेस्ट भी अलाउ हो जाएगा। लेकिन जीएसटी पे अगर पेनल्टी भरा तो पेनल्टी तो कानून तोड़ने के लिए है, तो ना इनकम टैक्स का पेनल्टी ना जीएसटी का पेनल्टी, कुछ भी अलाउ नहीं होगा। जीएसटी का रिफंड इज टैक्सेबल एज पीजीबीपी इनकम 41 सबसेक्शन 1। अगर जीएसटी पे किया था तो डिडक्शन लिया था, तो जब रिफंड आएगा तो रिफंड पे टैक्स भी भरना पड़ेगा, और जब डिडक्शन लिया था वो पीजीबीपी के चैप्टर में लिया था तो रिफंड के वक्त हेड ऑफ इनकम भी पीजीबीपी ही होगा। और अगर जीएसटी रिफंड पे इंटरेस्ट मिला तो वो तो एक्स्ट्रा इनकम है, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओनली। तो जीएसटी के पेमेंट का डिडक्शन मिलता है, इनकम टैक्स के पेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता। जीएसटी के प्रोविजन का तो डिडक्शन भी नहीं मिलता, सिर्फ पेमेंट का ही डिडक्शन मिलेगा। जीएसटी पे इंटरेस्ट भरा उसका डिडक्शन मिल गया, जीएसटी पे पेनल्टी भरा नो डिडक्शन, जीएसटी का प्रिंसिपल अमाउंट रिफंड के तौर पे वापस आया टैक्सेबल एज इनकम, एंड जीएसटी रिफंड पे जो इंटरेस्ट आया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करो। ओके, नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज नंबर 5। कभी कभी पूछा जाता है अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नॉन मॉनिटरी परक्विजिट दे रहा है, मोटर कार दिया, अकोमोडेशन दिया, ईसॉप दिया, नॉन मॉनिटरी, तो उस नॉन मॉनिटरी परक्विजिट की वजह से आपकी सैलरी इनकम टैक्सेबल अमाउंट बढ़ गई, इसका मतलब उस नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे टैक्स भी डिडक्ट करना पड़ेगा। अब वो नॉन मॉनिटरी है, उस पे जो टीडीएस कंपोनेंट आता है, अगर एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से चाहे तो वो खुद अपने पॉकेट से बेयर करेगा और आपके सैलरी में से डिडक्ट नहीं करेगा। तो अगर वो उसकी मर्जी है एम्प्लॉयर की, इफ ही वांट्स टू गिव दिस एक्स्ट्रा बेनिफिट टू यू, ये बेनिफिट एम्प्लॉई के लिए एग्जेम्प्ट है, और एम्प्लॉयर जो ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है उसको हम डिसअलाउ करेंगे। सो अगर एम्प्लॉई की टैक्सेबल सैलरी 10 लाख है और उस 10 लाख की सैलरी पे सरचार्ज तो नहीं लगेगा, बट हेल्थ एजुकेशन सेस गिन के ऑप्ट आउट रेजिम लिया मैंने तो 1,17,000 का टैक्स आया। अब नॉन मॉनिटरी परक्विजिट लेट्स से इज 1 लाख, तो 1,17,000 का टैक्स ऑन एन इनकम ऑफ 10 lakhs, तो 1 लाख पे 11,700 का टीडीएस आएगा। मतलब अब क्या होगा, एम्प्लॉई की सैलरी में से जो टीडीएस जनरली 1,17,000 का डिडक्ट होता था वो अब 1,17,000 का डिडक्ट नहीं होगा। 1,17,000 के टीडीएस में से 11,700 एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से भरेगा। सो 1,05,300 का टैक्स एक्चुअली डिडक्ट हुआ, और ये 11,700 एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नुकसान नहीं हुआ है, बट एम्प्लॉई के पगार में से टीडीएस कम डिडक्ट हुआ। सो अब ये जो 11,700 है ना, ये एम्प्लॉई के लिए एक बेनिफिट हो गया, बट दिस बेनिफिट इज एग्जेम्प्ट अंडर 10(10)(c), और ये 11,700 एम्प्लॉयर के लिए एक एक्सपेंस हो गया, लेकिन ये एक्सपेंस डिसअलाउ होगा। दिस इज एंटायरली ऑन द एम्प्लॉयर्स डिस्क्रेशन, अगर वो ये करेगा तो ये टैक्स प्रोविजंस है। ओके, चलो नाउ पिकिंग अप अ डिफिकल्ट सेक्शन। एक्सपेंडिचर इज गेटिंग डिसअलाउड ड्यू टू टीडीएस डिफॉल्ट। काफी बार ये सेक्शन पूछा जाता है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट कभी कभी इतने अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट करता है कि इस सेक्शन को टीडीएस के चैप्टर के साथ कनेक्ट कर देता है, एंड यू आर सपोज टू सॉल्व इट इन द चैप्टर ऑफ पीजीबीपी। टीडीएस डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? टीडीएस डिफॉल्ट का मतलब हुआ, देखो, एक तो हमने टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया है व्हेन वी वर सपोज टू डिडक्ट टैक्स, सो दिस इज अ टीडीएस डिफॉल्ट। दूसरा, हमने टैक्स डिडक्ट तो किया लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक वो टैक्स डिपॉजिट नहीं किया, तो ये भी एक टीडीएस डिफॉल्ट हुआ। वापस एक बार सुनो,
अगर पेयर रिसीवर को पैसा पे करते वक्त टैक्स डिडक्ट ही नहीं करता और पूरा पेमेंट कर देता है, देन दैट इज अ टीडीएस डिफॉल्ट, टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स। या फिर वो टैक्स डिडक्ट तो करता है बट अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न वो टीडीएस गवर्नमेंट में डिपॉजिट नहीं करता, तो ये टीडीएस डिफॉल्ट है। अगर टीडीएस डिफॉल्ट हुई तो पेयर तेरे लिए एक्सपेंस हम डिसअलाउ करने वाले हैं। लेकिन अब सवाल आता है कितना डिसअलाउ करेंगे, पेयर तेरे लिए एक्सपेंस कितना डिसअलाउ होगा, तो वो डिपेंड करता है रिसीवर कौन है। अगर रिसीवर नॉन रेसिडेंट है, अगर रिसीवर नॉन रेसिडेंट है तो एक्सपेंडिचर का 100% डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब आप नेट प्रॉफिट में पूरा एक्सपेंस ऐड बैक कर दोगे, 100% एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मेरा रिसीवर रेसिडेंट है तो एक्सपेंडिचर का सिर्फ 30% डिसअलाउ हो जाएगा। इसका इंप्लाइड मतलब ये निकल के आता है कि 70% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज स्टिल अलाउड एज अ डिडक्शन टू द पेयर। उसने भले टीडीएस डिफॉल्ट किया हो लेकिन डिसअलाउंस सिर्फ एक्सपेंस का 30% ही होने वाला है। चलो ये तो हमने एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया। बेटा कब डिसअलाउ किया, टैक्स डिडक्ट नहीं किया था या टैक्स डिडक्ट किया था बट डिपॉजिट नहीं किया था। अच्छा, तो पहले एक इजी वाले सिचुएशन पे ध्यान देते हैं। टैक्स डिडक्ट किया था, प्लीज कीप योर आइज ऑन द स्क्रीन, हाँ गाइस। टैक्स डिडक्ट किया था लेकिन फिर वो टैक्स हमने डिपॉजिट नहीं किया था। सो स्टेप 1 हमने डिसअलाउ कर दिया। अब ये डिसअलाउड अमाउंट आगे जाके अलाउ कब होगी, जिस फाइनेंशियल ईयर में मैंने वो टीडीएस गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर दिया, देन द अमाउंट दैट वाज डिसअलाउड अर्लियर 100% या 30% डिपेंडिंग ऑन द केस will be now allowed in the previous year in which the TDS is deposited. What is the TDS default that the payer has committed here? The payer has deducted the tax but he has not deposited it up to the due date of filing return of income. तो करंट ईयर तुम्हारा PY 24-25 में वो एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया। अब 25-26, 26-27, 27-28 फ्यूचर में जब भी ये TDS वो एक्चुअली गवर्नमेंट में डिपॉजिट करेगा 24-25 के कैलकुलेशन में जितना डिसअलाउ हुआ था वो अब अलाउ हो जाएगा। बट इफ द टीडीएस डिफॉल्ट इज दैट टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड ओनली, पेयर वाज सपोज टू डिडक्ट टैक्स, उसने टैक्स डिडक्ट किया ही नहीं है, तो स्टेप वन विदाउट एनी डाउट एक्सपेंस डिसअलाउ करो। फिर आता है नेक्स्ट सवाल, सर ये एक्सपेंस अलाउ कब होगा। अब इसमें दो सिचुएशंस पॉसिबल है। सिचुएशन नंबर 1, इस वाले ट्रांजैक्शन में हमने टीडीएस नहीं किया है। व्हेन आई डू अ ट्रांजैक्शन विद द सेम रिसीवर विद द सेम पार्टी इन फ्यूचर एंड आई डिडक्ट टीडीएस ऑन द करंट ट्रांजैक्शन ऑल्सो, इन द करंट ट्रांजैक्शन आई डिड नॉट डिडक्ट टैक्स, तो करंट ट्रांजैक्शन का जो एक्सपेंस है वो तो डिसअलाउ हो गया। अब नेक्स्ट ईयर फ्यूचर में इसी रिसीवर के साथ जब मैं एक और ट्रांजैक्शन करूंगा तो उस फ्यूचर वाले ट्रांजैक्शन पे टीडीएस करने के साथ साथ मैं आज वाला जो ट्रांजैक्शन था उस पे भी टैक्स डिडक्ट करके फ्यूचर के ट्रांजैक्शन में वो टीडीएस कर लेता हूं। सो टैक्स डिडक्ट हुआ क्या, हाँ सर डिडक्ट तो हुआ लेकिन लेट हुआ। 24-25 में टीडीएस होना चाहिए था करंट ट्रांजैक्शन, टीडीएस हुआ 25-26 में, तो सर 24-25 में टीडीएस होना चाहिए था, हाँ जी किया नहीं तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया। अब 25-26 में हमने टैक्स, ध्यान से सुनना, डिडक्ट किया है। अपने आप से पूछो इज इट सफिशिएंट कि सिर्फ टैक्स डिडक्ट कर लूंगा मैं और वो डिसअलाउड वाली अमाउंट अलाउ हो जाएगी। 24-25 में डिसअलाउ किया आपने, क्यों, क्योंकि टीडीएस डिफॉल्ट हो गया। 25-26 में 24-25 के एक्सपेंस पर भी टैक्स सिर्फ डिडक्ट किया, डिपॉजिट करना बाकी है। क्या ये काफी है
इज दिस सफिशिएंट? नो सर। जब वो फ्यूचर में टीडीएस जो काटा है ना, subsequently when TDS is deducted subsequently, then the amount disallowed earlier 100% या 30% जो disallow किया है will be allowed in the previous year in which the TDS is deducted, नहीं deposited by the payer। तभी जाके तो पूरा ड्यूटी, पूरा लाइबिलिटी फुलफिल होगा ना। सिर्फ डिडक्ट करना काफी नहीं है, डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। अच्छा, सपोज सेकेंड ऑल्टरनेटिव, पेयर ने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, लेकिन रिसीवर ने ना, रिसीवर की तो इनकम है, उसने ऑब्वियसली उस इनकम को शो किया अपने रिटर्न ऑफ इनकम में, उसको रिफ्लेक्ट किया, उसको डिस्क्लोज किया और खुद अपने पॉकेट से इनकम टैक्स जो भी बनता था वो पे कर दिया। सो मैंने आपको पेमेंट किया, मेरे लिए वो एक्सपेंस ट्रांजैक्शन है, आपके लिए इनकम ट्रांजैक्शन है, मैंने आपको पूरा पैसा दे दिया विदाउट डिडक्टिंग टैक्स। अब फ्यूचर में मैं आपके साथ कोई और ट्रांजैक्शन करूं उसके पहले, यू आर द रिसीवर इन दिस ट्रांजैक्शन, तुमने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया और उसमें ये इनकम दिखाई, इस इनकम पे टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, तुमने टैक्स भर दिया तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, तो गवर्नमेंट बोलता है देख भाई पेयर, तेरे लिए जो डिसअलाउ हुआ ना विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन द ईयर इन विच द रिसीवर फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम। अब जनरली अपने आप से पूछो रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल होता है सर? रिटर्न ऑफ इनकम तो असेसमेंट ईयर में फाइल होता है। सो प्रीवियस ईयर 24-25 में एक्सपेंस को डिसअलाउ किया, किसके लिए डिसअलाउ किया सर? पेयर के लिए डिसअलाउ किया, क्योंकि उस पेयर से टीडीएस डिफॉल्ट हो गया था। फिर प्रीवियस ईयर 25-26 में जो रिसीवर ऑफ इनकम है उसने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल करने के बाद उसने टैक्स पे किया, और रिटर्न फाइल किया, टैक्स पे किया, उसके बाद जो डिसअलाउड अमाउंट ऊपर पेयर के लिए है ना, वो जाके अब पेयर के लिए डिडक्शन आएगा, allowed as a deduction for the payer. So whether it is alternative 1 or alternative 2, याद रखना एक्सपेंडिचर तो डिसअलाउ करना ही है। ये सर ये दो अल्टरनेटिव्स क्यों है? बेटा ये दो अल्टरनेटिव्स है वो डिसाइड करने के लिए कि एक्सपेंडिचर अलाउ कब होगा फ्यूचर में। सो दो सेक्शन नंबर्स है, कभी कभी थियरी में लिखना पड़ेगा, इसलिए सेक्शन नंबर याद रख लो। याद रखना भी थोड़ा सिंपल ही है बेटा। व्हेन डज 100% अप्लाई? 100% एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। ये कब अप्लाई होता है? जब मेरा रिसीवर नॉन रेसिडेंट है। तो जब मेरा रिसीवर नॉन रेसिडेंट है तो 40A सब क्लॉज नंबर 1 लगेगा, और अगर मेरा रिसीवर रेसिडेंट है तो 30% डिसअलाउ होगा। ये सब क्लॉज नंबर 1A में लिखा है। सो बस कभी कभी थियरी में ये 40 इंटू ब्रैकेट A इंटू ब्रैकेट 1 इंटू ब्रैकेट 1A, ये दो सब क्लॉज नंबर याद रख लेना। अच्छा, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैंने बातों बातों में कहा था, वो मैं अभी प्रॉपरली लिख भी लेता हूं तो आपके सामने। इन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट किए जिसमें टीडीएस के सेक्शंस को पीजीबीपी के डिसअलाउंस के साथ कनेक्ट कर दिया। सो इफ टीडीएस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, अगर टीडीएस का सेक्शन नहीं लगता, किसी रीजन की वजह से टैक्स डिडक्ट नहीं करना है, रीजन बताता हूं। नंबर 1, आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। नंबर 2, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, हम ये टीडीएस के रिवीजन में देखेंगे, आप इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो एज द पेयर, और आपका पिछले साल का बिजनेस में से टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है, प्रोफेशन में से टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है, तो आज करंट ईयर में आपको टैक्स डिडक्ट ही नहीं करना। एंड नंबर 3, टीडीएस के सेक्शन में ही आपका ट्रांजैक्शन एक्सेप्शन के तौर पे लिखा हुआ है। इफ टीडीएस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, रीजन नंबर 1, आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है। रीजन नंबर 2, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो एज अ पेयर, बट आपका पिछले साल का बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है, प्रोफेशन
50 लाख या उससे कम है, तो आज करंट ईयर में टीडीएस का सेक्शन ही आपको अप्लाई नहीं होता। एंड नंबर 3, यू आर कवर्ड बाय द टीडीएस सेक्शन, बट सेक्शन में ही लिखा है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ ना, तो एक्सेप्शन है। अगर टीडीएस सेक्शन अप्लाई ही नहीं होता, देन देयर विल बी नो डिसअलाउंस अंडर दिस सेक्शन 40A सब क्लॉज नंबर 1 एंड सब क्लॉज नंबर 1A फॉर द पेयर, क्योंकि फिर तो इनकम टैक्स एक्ट खुद ही बोल रहा है ना कि टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर वो खुद इनकम टैक्स एक्ट पलट के ये भी नहीं बोल सकता ना कि तुमने टीडीएस डिफॉल्ट किया। टीडीएस के चैप्टर के हिसाब से टैक्स डिडक्ट नहीं करना है, ठीक है, पीजीबीपी के चैप्टर के हिसाब से हम डिसअलाउ भी नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर को अलाउ कर देंगे। ओके, गोइंग अहेड, अनदर सेक्शन विच इज इंपॉर्टेंट गाइस, हल्का सा छोटा सा एक अमेंडमेंट है, बट क्वाइट फ्रैंकली अमेंडमेंट नहीं भी होता तो भी ये सेक्शन एमसीक्यू के तौर पे इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के तौर पे इंपॉर्टेंट है। एक पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर्स को जो पे करती है उससे रिलेटेड पूरा डिस्कशन है। सो इफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स एज पर पीएसआर, तो वो पार्टनर के लिए एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि दिस प्रॉफिट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म जो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स तो ऑब्वियसली पार्टनर के लिए एग्जेम्प्ट हो गया, फॉर्म ने टैक्स भर दिया। सेकेंड, अगर फॉर्म ने इंटरेस्ट पे किया, अब वो इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट पे हो सकता है, वो इंटरेस्ट करंट अकाउंट पे हो सकता है, वो इंटरेस्ट लोन अकाउंट पे हो सकता है। सेक्शन में क्लियर लिखा है एनी इंटरेस्ट, अगर वो डीड के हिसाब से ऑथोराइज नहीं है, अगर डीड में परमिशन नहीं दी गई है, डीड में लिखा नहीं है कि इट इज टू बी पेड, फिर भी आपने पे किया है, तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इट विल बी फुल्ली डिसअलाउड, विच मीन्स दिस विल बी नॉट टैक्सेबल फॉर द पार्टनर। That means you will get a deduction only when the interest is authorized by the partnership deed. But if it is authorized by the partnership deed, there is a maximum limit. You will get a deduction of interest only if it is 12% per annum या उससे कम। मतलब if the interest is greater than 12% per annum, तो 12% per annum तक डिडक्शन अलाउ होगा, और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट पे हुआ है वो फॉर्म के लिए डिसअलाउ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन इक्वल टू 12%, ये इंटरेस्ट का पूरा डिडक्शन फॉर्म को मिला, एंड दिस मीन्स दिस इंटरेस्ट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल फॉर द पार्टनर। बट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सीडिंग 12%, तो ये जो 12% वाला चीज अलाउ हुआ वो ही 12% पर एनम वाला इंटरेस्ट पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो गया। जो एक्सेस इंटरेस्ट पार्टनर को मिला है वो पार्टनर के लिए टैक्स नहीं होगा, हमने फॉर्म के लिए उसको डिसअलाउ कर दिया है। इफ वी आर पेइंग एनी सैलरी टू द पार्टनर, अब वो पार्टनर अगर स्लीपिंग पार्टनर है तो वो सैलरी पूरा फॉर्म के लिए डिसअलाउ हो जाएगा, विच मीन्स पार्टनर के लिए, स्लीपिंग पार्टनर के लिए वो सैलरी टैक्सेबल नहीं होने वाला। इफ द पार्टनर इज अ एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, एंड द सैलरी इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय द डीड, तो अनऑथोराइज्ड सैलरी को तो वैसे भी डिसअलाउ करना है। इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय द डीड बट फॉर अ प्रायर पीरियड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से डिसअलाउ हुआ, तो वो सैलरी डिसअलाउ करना, रेट्रोस्पेक्टिव पीरियड से वो सैलरी ऑथोराइज हुई, आई एम सॉरी, रेट्रोस्पेक्टिव प्रायर पीरियड से वो सैलरी को आपने ऑथोराइज्ड बना दिया, तो उस ऑथोराइजेशन को हम सही नहीं मानेंगे, एंड वी विल डिसअलाउ दैट प्रायर पीरियड का सैलरी इफ इट इज ऑथोराइज्ड, इफ द सैलरी इज ऑथोराइज्ड प्रोस्पेक्टिवली। हाँ, ये सैलरी का डिडक्शन मिलेगा, बट डिडक्शन मिलेगा अप टू अ सर्टन लिमिट। तो ये लिमिट कैलकुलेशन कैसे करना है? स्टेप नंबर 1, यू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज बुक प्रॉफिट और बुक लॉस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। वो कैसे मिलेगा? स्टार्ट विथ योर अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट, नेट लॉस,
नॉर्मल पीजीबीपी के सारे एडजस्टमेंट्स जो सेक्शन 28 टू 43 सीए में करने हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स करो। सैलरी दैट यू पे टू ऑल द पार्टनर्स, वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सारे पार्टनर्स का जो सैलरी है वो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया हुआ है, सबसे पहले तो उसको ऐड बैक कर दो। स्लीपिंग पार्टनर का सैलरी तो वैसे भी ऐड बैक करना ही पड़ता है, इवन एक्टिव पार्टनर का सैलरी भी ऐड बैक कर दो। ये सेक्शन 28 टू सेक्शन 43 CA का मतलब होता है दिस इज इंक्लूडिंग सेक्शन नंबर 40B का इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, सैलरी टू स्लीपिंग पार्टनर, अनऑथोराइज सैलरी। 40B के हिसाब से जो भी डिसअलाउ होता है वो सब कुछ भी इसी 28 टू 43 CA के रेंज में आ जाएगा। अब आपके पास बुक प्रॉफिट या बुक लॉस आ गया। उस बुक प्रॉफिट या बुक लॉस के हिसाब से यू विल कैलकुलेट द लिमिट, और इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, सो लेट्स फोकस ऑन द अमेंडेड पार्ट ओनली। पुराना क्या था वो छोड़ दो। अगर आपके पास बुक लॉस कैलकुलेट हुआ है तो द लिमिट इज 3 लाख रुपीज, मतलब 3 लाख रुपीज तक आप अपने वर्किंग पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर्स को सैलरी पे कर सकते हो। 3 लाख रुपीज के ऊपर जितना सैलरी पे किया है वो डिसअलाउ करो। अगर बाय चांस इट इज अ बुक प्रॉफिट, देन if the book profit is less than or equal to 6 lakh rupees, less than or equal to 6 lakh rupees, तो 90% of the book profit or a minimum limit of 3 lakhs, whichever is higher, that is the limit। इस लिमिट के ऊपर, ये फॉर्मूला के हिसाब से जो भी अमाउंट आएगी आपकी, इस लिमिट के ऊपर अगर आपने सैलरी पे की है तो वो सैलरी हम अलाउ नहीं करेंगे। इफ द बुक प्रॉफिट exceeds 6 lakh rupees, greater than 6 lakhs, तो 90% on the first 6 lakhs, और फिर 6 लाख के ऊपर जितना भी बुक प्रॉफिट है उस ऊपर के बुक प्रॉफिट पे 60%, और ये दो अमाउंट्स का जो टोटल आएगा 90% ऑफ 6 lakhs मतलब 5,40,000 आएगा। ये 5,40,000 प्लस 6 लाख के ऊपर जितना बुक प्रॉफिट है उस बुक प्रॉफिट का 60%, ये जो दो अमाउंट का टोटल आया, दिस इज द लिमिट अप टू विच द सैलरी विल बी अलाउड। तो फाइंड आउट आपने अपने एक्टिव पार्टनर को कितना सैलरी पे किया, जो बाय द वे डीड के हिसाब से ऑथराइज होना चाहिए, एंड इट शुड बी ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड। उस सैलरी को फिर ये ऊपर वाली लिमिट के साथ कंपेयर करो। आउट ऑफ द टू विच एवर इज लेस, दिस इज गोइंग टू बी द डिडक्शन दैट विल बी अलाउड टू द पार्टनरशिप फॉर्म। इसका मतलब ऊपर जो आपने बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करके रखा था, उस बुक प्रॉफिट में से ये जो विच एवर इज लेस वाली अमाउंट है इसको माइनस कर दो, और जो बैलेंस अमाउंट आया वो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए टैक्सेबल पीजीबीपी हुआ। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब हम पार्टनर के एंगल से बात कर रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों टाइप के पार्टनर्स, एक्टिव एंड स्लीपिंग, दोनों के लिए एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो तो फॉर्म ने टैक्स पे कर दिया। अगर इंटरेस्ट मिलती है, इंटरेस्ट इनकम मिलती है पार्टनर को, तो स्लीपिंग पार्टनर हो या एक्टिव पार्टनर हो, इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन इज सेम, टैक्सेबल अप टू 12%। अगर 12% से ज्यादा पे किया है तो वो पार्टनर के लिए टैक्सेबल नहीं है क्योंकि हमने फॉर्म के लिए उसको डिसअलाउ कर दिया है। एंड इफ सैलरी इज व्हाट वी आर रिसीविंग फ्रॉम द फॉर्म, स्लीपिंग पार्टनर के लिए तो वो सैलरी टैक्सेबल ही नहीं है क्योंकि फॉर्म के लिए हमने वो डिसअलाउ कर दी है। वर्किंग एक्टिव पार्टनर के लिए उतना ही टैक्सेबल है जितना डिडक्शन सेक्शन 40B में फर्म को अलाउ हुआ है, उतना ही अमाउंट पार्टनर के लिए टैक्सेबल होगा। चलो गोइंग अहेड, सेक्शन नंबर 40A, इसमें 4 छोटे से सब सेक्शंस है। एक चीज याद रखना, दिस सेक्शन ओवरराइड्स द एंटायर इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, सारे टाइप के एक्सपेंस, लेकिन अगर ये 40 कैपिटल ए वाला चीज ट्रिगर हो गया तो वो डिसअलाउ हो जाएंगे। अगर आपने 40 कैपिटल ए को वायलेट किया है तो फिर वो एक्सपेंस डिसअलाउ होगा। 40A सबसेक्शन 2, आपने अपने रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया एंड एज अ पेयर आपने मार्केट वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे किया, तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा कितना पे किया उस एक्सेस को हम डिसअलाउ करेंगे। इसका मतलब रिसीवर के लिए तो भाई पूरा पूरा टैक्सेबल होगा, रिसीवर के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये पूरा सेक्शन पेयर के लिए है। दिस सेक्शन ओनली अप्लाइज टू एक्सपेंडिचर, मतलब अगर आपने ज्यादा पे किया है तो ज्यादा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा,
बट इफ यू हैव रिसीव्ड लेस इनकम फ्रॉम योर रिलेटेड पार्टी, देन दैट लेस अमाउंट दैट यू रिसीव्ड उसको ऐड करने का कोई स्कोप नहीं है। एक्सपेंस ज्यादा पे किया तो वो डिसअलाउ होगा। लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स या रिलेटेड पार्टी, एक बार ये लिस्ट देख लेना। रिलेटिव्स में कौन कौन आता है, तो इंडिविजुअल के लिए हस्बैंड, इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, ये सब रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। कंपनी के लिए कंपनी का डायरेक्टर और उस डायरेक्टर का रिलेटिव भी कवर हुआ। अगर कंपनी में किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब मिनिमम 20% ऑफ वोटिंग पावर, तो वो बंदा भी रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी बना। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक पार्टनर या उस पार्टनर का रिलेटिव, पार्टनर के फादर, पार्टनर का स्पाउस, पार्टनर का चाइल्ड। एओपी बीओआई के लिए मेंबर या मेंबर का रिलेटिव। एचयूएफ के लिए मेंबर या उस मेंबर का रिलेटिव। अगर एक कंपनी, फॉर्म, एओपी, एचयूएफ, बीओआई है एंड एक इंडिविजुअल का इनमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो इंडिविजुअल भी रिलेटिव हुआ। देयर इज अ कंपनी और अ फॉर्म ऑन वन हैंड एंड देयर इज अ कंपनी और फॉर्म ऑन द अदर हैंड ऑल्सो। और अब क्या है कि एक कंपनी का दूसरे कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, एक कंपनी का किसी फॉर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो जिस कंपनी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसके डायरेक्टर, उसके पार्टनर या उसके रिलेटिव्स, ये सब रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स, ये सब भी पेयर कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। पेयर कंपनी, पेयर फॉर्म, रिसीवर कंपनी, रिसीवर फॉर्म, लेकिन दोनों में कॉमन लिंक क्या है, डायरेक्टर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो इस पेयर का डायरेक्टर जो है, उस डायरेक्टर का इस रिसीवर में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी ये डायरेक्टर एक कॉमन लिंक है और इसकी वजह से द टू कंपनीज, द टू पार्टनरशिप फॉर्म्स विल बी रिलेटेड पार्टीज। चलो, गोइंग ऑन, 40A सबसेक्शन 3। 40A सबसेक्शन 3 हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए देख लिया है। ये वाला सेक्शन is applicable for revenue expense. What is this section saying? Expenditure is greater than 10,000. Payment to be made on a single day is greater than 10,000. And अगर आपने ये वाले modes नहीं use किए हैं, you have not used these modes of payment, prohibited mode use किए हैं, आपने mode of payment use किया है cash, आपने mode of payment use किया है bearer check, आपने crossed check से payment किया है, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपने जितना भी अमाउंट पे किया ऑन अ सिंगल डे नॉट थ्रू द प्रिस्क्राइब मोड, वो डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब अगर सिंगल डे पेमेंट 10,000 से ज्यादा है और वो प्रिस्क्राइब्ड मोड से पे हो रहा है, प्रिस्क्राइब मोड से पे हो रहा है, तो अलाउ हो जाएगा। और अगर आपका एक्सपेंडिचर 10,000 या उससे कम है तो फिर प्रिस्क्राइब मोड हो या प्रोहिबिटेड मोड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट, वो अलाउ हो जाएगा। एक्सपेंस को डिसअलाउ करने के लिए 3 कंडीशन, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस शुड बी मोर देन 10,000, पेमेंट ऑन अ सिंगल डे शुड बी मोर देन 10,000, और वो जो मोड्स प्रिस्क्राइब्ड है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, रूल 6 ABBA वाले, इसमें से कोई भी मोड आपने यूज नहीं किया है। सबसेक्शन 3, अगर बाई चांस आपने किसी एक्सपेंस का डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे ले लिया और फिर फ्यूचर किसी ईयर में आपने पेमेंट किया उस एक्सपेंस का और वो पेमेंट प्रिस्क्राइब मोड से नहीं किया है, तो जितना अमाउंट आपने पे किया ना उसको आपकी इनकम मान लेंगे और उस अमाउंट ऑफ पेमेंट पेड थ्रू प्रोहिबिटेड मोड्स उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, बिकॉज दिस इज टैक्सेबल फॉर यू एज बिजनेस इनकम। मतलब आपने अक्रूवल बेसिस पे 24-25 में डिडक्शन ले लिया और 25-26 में इन अ फ्यूचर ईयर पेमेंट किया कैश में, तो जितना पे किया उसको डीम्ड टू बी योर इनकम और उस पर टैक्स लग जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो, वो बंदा आपके लिए गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो उसको थ्रेशोल्ड लिमिट 35,000 का रख दिया। मतलब यू कैन पे इन कैश टू दैट पर्सन बट दैट अमाउंट कैन बी 35,000 या उससे कम। उससे ज्यादा पे करना पड़ा तो प्रिस्क्राइब मोड यूज कर रहा हूं, वरना हम डिसअलाउ कर देंगे। कहने का मतलब सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सैलरी टू एम्प्लॉइज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस,
टेलीफोन चार्जेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस के लिए थ्रेशोल्ड अमाउंट 10,000, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करने के लिए जो गुड्स कैरेजेस से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उनके लिए द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 35,000। कुछ एक्सेप्शन प्रिस्क्राइब किए रूल 6DD में। अगर आप 10,000 से ज्यादा या 35,000 से ज्यादा पेमेंट करते हो थ्रू प्रोहिबिटेड मोड्स, बट अगर आप एक्सेप्शनल केसेस में कवर हो जाते हो तो एक्सपेंस अलाउ होगा, हम डिसअलाउ नहीं करेंगे। ओके, व्हाट आर दिस रूल 6DD? आपने आरबीआई को पे किया, किसी बैंक को पे किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक की किसी सब्सिडरी, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसी कोऑपरेटिव बैंक को पे किया, लैंड मॉर्गेज बैंक, LIC को पे किया, एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ग्रुप इंश्योरेंस जैसा, गवर्नमेंट को पे किया जिसे GST पे किया, म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया। एक ऐसे पर्सन को पे किया जो अपना बिजनेस प्रोफेशन करता है किसी ऐसे गांव में, किसी ऐसे विलेज में, किसी ऐसे टाउन में जहां पे बैंक ही नहीं है, कोई बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है, तो उसको कंपल्सरीली कैश देना पड़ेगा। तो अब हम इस एक्सपेंस को अलाउ कर देंगे। अगर आप एम्प्लॉई को पे कर रहे हो या एम्प्लॉई के लीगल एयर को पे कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉई रिटायर हो गया, उसको जॉब से निकाल दिया, या वो एम्प्लॉई मर गया और उसके लीगल एयर को पेमेंट करना है। क्या पेमेंट करना है? ग्रेच्युटी पे करना है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, टर्मिनल बेनिफिट, टर्मिनेशन बेनिफिट, एंड द टोटल अमाउंट दैट यू आर सपोज टू पे डज नॉट एक्सीड 50,000। तो तुम कैश या बेरर चेक दे दोगे तो चलेगा। 50,000 के ऊपर आया तो भाई हम बोलते हैं कि फिर प्रिस्क्राइब मोड ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपने लेटर ऑफ क्रेडिट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, बैंक टू बैंक एडजस्टमेंट कर दिया, तो चेक तो बनाया नहीं बट फिर भी एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ऑनर करने के लिए पेमेंट कर दिया। अगर दोनों पार्टीज में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने आपको पेमेंट करना है एंड आपने मुझको पेमेंट करना है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ चेक हमने वो अमाउंट सेटल कर दिया, तो वो जो नेट अमाउंट सेटल कर दिया वो 10,000 से ज्यादा हो सकता है। ऐसा 10,000 से ज्यादा का जो सेटलमेंट हो गया उसमें कोई चेक तो बना नहीं, बट देन इसमें कोई गड़बड़, कोई घोटाला है ही नहीं, तो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। अगर विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप किसी कॉटेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स खरीदते हो और उन्होंने वो प्रोडक्ट्स बनाए हैं और आप उसको खरीद रहे हो, तो यू कैन मेक अ पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट इन कैश, इट्स एब्सोल्युटली ओके। एक ऑथोराइज्ड डीलर ने पेमेंट किया क्योंकि वो फॉरेन करेंसी खरीद रहा है, उसके लिए तो भाई करेंसी ही गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, उसको तो डे इन डे आउट रुपीस करेंसी में डीलिंग करना पड़ेगा, तो वो कैश देगा इंडियन रुपीज में ताकि वो फॉरेन करेंसी खरीद सके। तो दिस एक्सपेंडिचर इज मोर देन 10,000, बट ऑब्वियसली दिन का होगा मोर देन 10,000 इन कैश, ये एक्सपेंस अलाउ होगा, रूल 6DD का एक्सेप्शन। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को टेम्पररली कहीं पोस्ट किया है 15 दिन या उससे ज्यादा, और वो कहां पे पोस्ट किया है? अदर देन इज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी और ऑन अ शिप, और उस शिप में, उस अदर प्लेस में उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो भाई TDS डिडक्ट करने के बाद आप जितना भी बैलेंस सैलरी बनता है वो उसको पे कर दो। इसके लिए जरूरी है दैट द पोस्टिंग शुड बी अ टेम्पररी पोस्टिंग ऑफ 15 डेज और मोर। जिस जगह पे उसको पोस्ट किया है वहां पे कोई बैंक अकाउंट नहीं है, एंड टुडे आप TDS काटने के बाद सैलरी दे रहे हो तो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। अगर एक एजेंट है मेरा, ही इज सपोज टू मेक अ पेमेंट इन कैश, इसलिए मैं उस एजेंट को कैश देता हूं, तो फिर एक्सपेंस मेरे लिए अलाउ हो जाएगा। चलो गोइंग अहेड, लास्ट 2 सेक्शंस ऑफ डिसअलाउंसेस, फिर एक्सपेंसेस डिसअलाउड खत्म हुआ। अगर मैं ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाता हूं बुक्स में तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर ग्रेच्युटी करंट ईयर में पेएबल हुआ 24-25, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय करंट ईयर 24-25 में ही रिटायर हुआ, तो नाउ ग्रेच्युटी बिकम्स पेएबल। वो ग्रेच्युटी का अगर मैंने प्रोविजन बनाया तो भाई उसका डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब एवरी ईयर मैं ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाता हूं बुक्स में कि आज से 10-12 साल के बाद ग्रेच्युटी पे करनी पड़ेगी, ये ईयरली प्रोविजन डिसअलाउ होगा। बट जिस ईयर में मेरे 5 एम्प्लॉय रिटायर हुए उस ईयर में तो उनको ग्रेच्युटी देना ही पड़ेगा, फिर ये प्रोविजन अलाउ हो जाएगा। अगर ग्रेच्युटी फंड में आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो दैट ग्रेच्युटी फंड हैज टू बी एन अप्रूव्ड फंड, तभी जाके डिडक्शन मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर अनरिकॉग्नाइज्ड, अनअप्रूव्ड फंड्स में कंट्रीब्यूट करता है,
अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड ऑल्सो, अनअप्रूव्ड पेंशन स्कीम ऑल्सो। तो भाई एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा जब वो कंट्रीब्यूशन करेगा। हाँ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉई द एंटायर अमाउंट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन टू द एम्प्लॉयर, बट एट द टाइम ऑफ सर्विस पीरियड वो अनअप्रूव्ड फंड होने की वजह से डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, सेक्शन नंबर 41, इनकम टैक्सेबल प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स। अगर आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं है, अगर आपने वो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है और उसके बाद ये इनकम्स जनरेट होती है, फिर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर कोई लॉस, कोई एक्सपेंस का डिडक्शन मिल गया है पास्ट में, तो डेबिट इफेक्ट हुआ था, एक्सपेंस हुआ था, आपने डिडक्शन ले लिया, फिर उससे रिलेटेड कोई अमाउंट मिला तो वो पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल होगा। अगर कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी था, आपने गुड्स खरीदा था, सो इट इज एन एक्सपेंस फॉर यू, वो क्रेडिटर को आपने राइट बैक कर दिया है, देन द अमाउंट रिटर्न बैक इज टैक्सेबल एज योर इनकम। क्योंकि जब आपने गुड्स खरीदा था तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट करके डिडक्शन ले लिया था, अब वो क्रेडिटर जो है वो राइट बैक कर दिया आपने। डेटर को राइट ऑफ करते हैं, क्रेडिटर को राइट बैक करते हैं, तो वो राइट बैक किया वो क्रेडिटर, उसका वो अमाउंट टैक्सेबल हो गया। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस, दैट मीन्स यू आर इनटू पावर जनरेशन या पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड उस एसेट जिस पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस, उस एसेट को आपने सेल कर दिया, तो अब सेल प्रोसीड्स पे जितना पैसा आया तो उस सेल प्रोसीड्स पे प्रॉफिट कितना हुआ वो प्रॉफिट गिनो, और फिर उसको डेप्रिसिएशन जो आपने एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट किया है उसके साथ कंपेयर करो। आउट ऑफ द टू विच एवर इज लोअर, दिस विल बी टैक्सेबल फॉर यू अंडर द हेड पीजीबीपी। इनकम फ्रॉम एन एसेट यूटिलाइज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च पे अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो उसका 100% डिडक्शन मिलता है आपको, सब्जेक्ट टू अवेलेबल प्रॉफिट्स। अब उस एसेट को आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए बगैर सीधा सीधा बेच दिया, देन बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, ब्लॉक ऑफ एसेट में इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, आउटराइट बेच दिया, तो हमने ये ऑलरेडी अदर पॉइंट्स रिलेटिंग टू सेक्शन 35 में देख लिया था। आप क्या करो, बहुत सिंपल है, फाइंड आउट द प्रॉफिट दैट यू गेट ऑन द सेल एंड देन प्रॉफिट दैट यू गेट ऑन द सेल एंड यू कंपेयर दिस with the amount of deduction under section 35 that you have taken so far. Out of the two, whichever is less is your amount taxable. Bad debts recovered. अब we all know कि जब bad debts मैं बुक्स में राइट ऑफ करता हूं तो उसका डिडक्शन मिलता है, फिर मुझे जो पैसा रिकवर हुआ वो रिकवरी अमाउंट टैक्सेबल हो गई। आरटीपी मई 2025, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आरटीपी, इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड एक छोटा सा एडजस्टमेंट पूछा है। समझ लो 100 रुपए का मेरा बैड डेट्स था और मैंने 70 रुपीज राइट ऑफ कर दिया, दैट मीन्स अभी भी डेटर 30 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। अब उस डेटर ने मुझे 52 रुपीज का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा 22 रुपीज मिला है, दिस 22 रुपीज इज टैक्सेबल एज माई बैड डेट्स रिकवर्ड। Special provisions for land and building held as stock in trade. Land and building held as stock in trade मतलब ये मैं बिल्डर का बात कर रहा हूँ या जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, उनके लिए लैंड एंड बिल्डिंग इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इस पूरे सेक्शन को समझने के लिए जस्ट कीप दिस वन थिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड। बिल्डर के पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में, बिल्डर के पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में जो रिकॉर्ड होगा वो सेल रिकॉर्ड होगा, सेल ऑफ फ्लैट, सेल ऑफ लैंड, और ये जो अमाउंट रिकॉर्ड होगा ना वो एक्चुअल कंसिडरेशन, जितना पैसा हमने अग्रीमेंट के हिसाब से लिया है वो अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा। द सेल्स विल बी रिकॉर्डेड एट कंसिडरेशन। ये वर्ड याद रखना, कंसिडरेशन। अगर अपना कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, अगर अपना कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो ही ये सेक्शन लगता है। अगर बाय चांस अपना स्टैम्प ड्यूटी, अपना कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है या एग्जैक्टली इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, देन आई डोंट नीड दिस सेक्शन ओनली,
पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कंसिडरेशन ऑलरेडी क्रेडिटेड है, नेट प्रॉफिट में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मेरा कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो एक छोटा सा रिलैक्सेशन दिया, कंसिडरेशन का 110% कैलकुलेट करो। अगर आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एसडीवी उस 110% से कम है या इक्वल टू दैट है तो हम आपके एक्चुअल कंसिडरेशन पे ही आपसे टैक्स लेंगे और वही अमाउंट पीएनएल में क्रेडिटेड है तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एसडीवी 110% से ज्यादा है, नाउ वी आर गोइंग टू टैक्स यू ऑन द एसडीवी, लेकिन आपने तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में कंसिडरेशन को क्रेडिट करके रखा है तो एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, ये जो डिफरेंस आया इस डिफरेंस पे यू विल हैव टू पे टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट में ये डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है तो चेक करो कंसिडरेशन पूरा पूरा या थोड़ा बहुत ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट रिसीव हो चुका है एंड हैज इट बीन रिसीव्ड थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड मोड्स। अगर यस तो यू टेक स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, अदरवाइज यू टेक स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैश में पैसा मिला, अग्रीमेंट की डेट के बाद पैसा मिला तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब मोड्स तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। अगर बाय चांस हमने एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट किया, हमने मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट किया और वो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू दिया वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल होगा, मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, इस डिफरेंस को ऐड करो। बट इफ द वैल्यूएशन ऑफिसर्स वैल्यू इज लेस देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देन वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू पे टैक्स लगेगा। अब वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू माइनस जो कंसिडरेशन पीएनएल में क्रेडिटेड था इतना अब प्रॉफिट पे ऐड करो। दिस सेक्शन नंबर 43CA इज एब्सोल्युटली डिटो आइडेंटिकल टू कैपिटल गेन्स का सेक्शन अंडर कैपिटल गेन्स का सेक्शन नंबर 50C। कैपिटल गेन्स में लैंड एंड बिल्डिंग आर हेल्ड एज कैपिटल एसेट, यहां पे 43CA में दे आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, बस वही डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा सेक्शन एग्जैक्टली सेम है। चलो चैप्टर के एंड में आते हैं। मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टेन पर्संस, इस सेक्शन के हिसाब से मेंटेनिंग बुक्स कंपलसरी हो जाएगा। सर्टेन प्रोफेशंस आर सिलेक्टेड बाय यू, सेक्शन ने कुछ प्रोफेशंस का लिस्ट बना दिया, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स आर ऑल कवर्ड। अगर ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर is greater than 1,50,000 and you are satisfying this condition for all the past 3 years, अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो जर्नल, लेजर, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बिल्स इश्यूड, बिल्स रिसीव्ड, मतलब इनकम एक्सपेंस का प्रूफ, जर्नल, लेजर, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बैंक बुक, सब कंपलसरीली मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये कंपलसरीली मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी। बट इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, मेरे पिछले 3 सालों में से कोई 1 साल का ग्रॉस रिसीट जो क्लाइंट से मिला वो 1,50,000 से कम है या एग्जैक्टली 1,50,000 है, तो फिर इतने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लो कि इनकम टैक्स ऑफिसर जब भी चाहे तो तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट खोल के तुम्हारा टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सके। प्रोफेशंस के लिए इट इज वेरी सिंपल। अदर प्रोफेशंस जो उस स्पेसिफाइड के लिस्ट में नहीं थे या एनी बिजनेस, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, एनीवन। अब आपका बिजनेसमैन कौन है? बोला इंडिविजुअल HUF है, तो टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीट ग्रेटर देन 25 lakhs या फिर टैक्सेबल PGBP इनकम ग्रेटर देन 2,50,000। अब ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको पिछले 3 सालों में से कोई भी 1 साल के लिए सेटिस्फाई करनी है। या तो पिछले 3 साल में से कोई भी 1 साल टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट, पीएनएल क्रेडिट का अमाउंट 25 लाख से ज्यादा है, या तो पिछले 3 सालों में से कोई भी 1 साल टैक्सेबल PGBP 2,50,000 से ज्यादा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो जिसको यूज करके इनकम टैक्स ऑफिसर जब चाहे तब आपका टोटल इनकम कैलकुलेट कर सके। एग्जैक्टली कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है ये मेंशन नहीं है,
अगर ये वाली कंडीशन अदर एसएससीज के लिए चेक करनी है तो 25 lakhs की जगह पे इन्होंने 10 lakhs का थ्रेशोल्ड लगा दिया और 2,50,000 की जगह पे 1,20,000 का थ्रेशोल्ड लगा दिया। दोनों में से कोई एक कंडीशन, तीन में से कोई एक साल। अच्छा, अगर आप ये वाली कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं करते तो बुक्स मेंटेन करना कंपलसरी है ही नहीं आपके लिए। इफ दिस सेक्शन इज नॉट फॉलोड तो यू विल हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000। असेसमेंट ईयर के एंड से 6 साल तक आपको बुक्स मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सो इफ इट इज असेसमेंट ईयर 25-26 अपना असेसमेंट ईयर, तो 31 मार्च 2032 तक इस बुक्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप ये बुक्स मेंटेन करो इन फिजिकल फॉर्म। टुडे और एवरी अकाउंटिंग इज डन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो भाई बैकअप लेके रखना, आपके उस ईयर का, उस अकाउंटिंग उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बैकअप लेके रखना एंड यू हैव टू प्रिजर्व इट फॉर अ स्पैन ऑफ 6 years। ओके, टैक्स ऑडिट का सेक्शन, दिस सेक्शन हैज मेनी रिपरकशंस इन द सब्जेक्ट। अलग अलग जगह पे आएगा। अगर टैक्स ऑडिट का ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है तो 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर इज योर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अगर बाय चांस टैक्स ऑडिट का सेक्शन अप्लाई नहीं होता देन द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विल बी 31 of July। प्रोफेशनल्स के लिए बेसिक रूल, इफ द ग्रॉस रिसीट इज ग्रेटर देन 50 lakhs तो ऑडिट विल अप्लाई। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कवर हो रहे हो and you want to show your profit less than what is mentioned in the section, but तुम्हारी इनकम इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो इस केस में प्रिजम्पटिव से कम प्रॉफिट दिखाना चाहते हो एंड ओवरऑल योर इनकम इज अबाउट द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो यू विल हैव टू फाइल तो यू विल हैव टू गेट योर बुक्स ऑडिटेड। लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव के सेक्शन में कवर होते हो और आप प्रिजम्पटिव के सेक्शन के हिसाब से ही अगर प्रॉफिट्स दिखाते हो तो फिर ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप प्रिजम्पटिव सेक्शन के अगेंस्ट जाते हो, अगर आप प्रिजम्पटिव सेक्शन के खिलाफ जाके कम टैक्स दिखाना चाहते हो, कम इनकम दिखाना चाहते हो, तभी हम इनकम टैक्स एक्ट में आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी करेंगे। उसी तरीके से बिजनेस, अगर बिजनेस में आपको पूरे बिजनेस में नहीं, आई एम सॉरी, अगर पूरे साल में जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसका लेस देन और इक्वल टू 5% अगर कैश में हुआ एंड पूरे साल में आपने जितना पेमेंट किया उस पेमेंट का लेस देन और इक्वल टू 5% अगर कैश में है, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत तब पड़ेगी when your turnover, when your sales is greater than 10 crores। वरना if this condition is not satisfied, tax audit will get triggered if your turnover, if your gross receipt is greater than 1 crore। कहने का मतलब अगर कैश पेमेंट 5% से ज्यादा हो गया, अगर कैश रिसीट 5% से ज्यादा हो गया, अगर दोनों 5% से ज्यादा हो गए तो फिर द मोमेंट योर टर्नओवर गोज अबव 1 crore सीधा टैक्स ऑडिट अप्लाई हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट दोनों के दोनों विद इन 5% है तो भाई 10 करोड़ के ऊपर जाएगा ना, तब जाके अपना टैक्स ऑडिट करवाना। अगर आपको कुछ अमाउंट मिला है या आपने कुछ अमाउंट पे किया है, वो चेक से है, वो डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट से है, लेकिन वो अकाउंट पे ही नहीं है तो उसको कैश ही माना जाएगा। टोटल पेमेंट्स में बिजनेस, नॉन बिजनेस, टोटल पेमेंट्स एंड टोटल रिसीट्स, ये जो दो वर्ड्स है ना, बिजनेस, नॉन बिजनेस, कैपिटल, रेवेन्यू सब कवर हुआ। शेयर्स इश्यू किया तो टोटल रिसीट्स में वो शेयर का पैसा भी इंक्लूड होगा। डिबेंचर रिडीम किया तो वो पेमेंट में जाएगा। क्रेडिटर को पे किया वो भी पेमेंट में कवर होगा। कोई पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल ट्रैवलिंग खर्चा पे किया वो भी पेमेंट में कवर होगा। रेंट इनकम मिला जो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है वो भी रिसीट में कवर होगा। सब कुछ कवर होने वाला है। अगर मेरा असेसी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कवर होता है 44AE ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस और वो कम प्रॉफिट दिखाना चाहता है तो भाई टैक्स ऑडिट करवाओ। अगर वो 44AD में कवर होता है बट अगर सबसेक्शन 4 ट्रिगर हो जाता है एंड इनकम इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो ऑडिट इज एप्लीकेबल। आगे जाके देखेंगे हम लोग। अगर वो 44AD में कवर होता है और प्रॉफिट्स 44AD के हिसाब से दिखाता है तो सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। योर ड्यू डेट शैल बी 31 October।
टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट 1 महीने प्रायर टू द ड्यू डेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता है। 0.5% ऑफ द टर्नओवर और अ मैक्सिमम ऑफ 1,50,000 इज द पेनल्टी अगर ऑडिट अप्लाई हुआ लेकिन आपने ऑडिट करवाया नहीं। चलो, रैपिंग अप द चैप्टर, लास्ट 3 सेक्शंस, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। सबसे पहला 44AD एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकते हैं, केस सिनेरियो एमसीक्यूज, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तीनों के तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों सेक्शन ध्यान से समझ लेना। 44AD, इंडिविजुअल HUF फॉर्म एक्सक्लूडिंग LLP बट दे आर रेसिडेंट्स, उनके लिए ही ये सेक्शन अप्लाई होता है। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू कंपनीज, LLP, AOP, BOI। Sorry, it is not applicable to assessees who are claiming profit based deduction under 10AA, profit based deduction under 80JJAA, QQB, RRB, उनके लिए नहीं है। अगर प्रोफेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये सेक्शन नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन तो सिर्फ बिजनेस के लिए है। एजेंट, कमीशन, ब्रोकरेज कमाने वाला बंदा, उनके लिए ये प्रिजम्पटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन योर एक्चुअल प्रॉफिट्स। क्राइटेरिया, पूरे साल में आपका टर्नओवर सेल्स 2 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, लेकिन अमाउंट रिसीव्ड इन कैश इज लेस देन 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ योर टोटल टर्नओवर, तो 2 की जगह पे थ्रेशोल्ड 3 करोड़, मतलब प्रिजम्पटिव का सेक्शन विल अप्लाई इफ योर ग्रॉस रिसीट्स आर लेस देन इक्वल टू 3 करोड़। ये देखो, एक कंपैरिजन देखो, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश इज लेस देन इक्वल टू 5%, तो 3 करोड़ का थ्रेशोल्ड लग गया। नाउ इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 3 करोड़, प्रिजम्पटिव का सेक्शन विल अप्लाई, बट इफ इट इज ग्रेटर देन 3 करोड़, प्रिजम्पटिव का सेक्शन विल नॉट अप्लाई। But if the amount received in cash is greater than 5%, तो भाई थ्रेशोल्ड बिकम्स 2 करोड़, अब लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, तो ही प्रिजम्पटिव का सेक्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। 2 करोड़ से ज्यादा हुआ तो प्रिजम्पटिव का सेक्शन नहीं लगेगा। हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रॉफिट टैक्सेबल? सेक्शन के हिसाब से जो अज्यूम्ड प्रॉफिट आया या एक्चुअल प्रॉफिट एज पर बुक्स, विच एवर इज हायर। सेक्शन के हिसाब से अज्यूम्ड प्रॉफिट, जितना टर्नओवर आपने रिसीव किया ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, सॉरी ऑन नहीं, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ड्यूरिंग द ईयर तो जो टर्नओवर रिसीव कर लिया, एक्चुअल रिसीव हो गया या ड्यू डेट के पहले रिसीव हुआ, थ्रू योर प्रिस्क्राइब मोड, उस पर 6% का रेशियो, बैलेंस टर्नओवर पे 8%। ये बैलेंस टर्नओवर पे रिसीवेबल वाला टर्नओवर भी इंक्लूड हो जाएगा कि भाई गुड्स तो बेच दिया है, पैसा अब तक मिला नहीं है, लेकिन बैड डेट्स भी नहीं हुआ है, डेटर के तौर पे दिख रहा है। या फिर प्रोहिबिटेड मोड, कैश में, बेरर चेक में मिल गया पैसा, या कैश सेल्स ही किया था डायरेक्ट, तो उस पे 8% का प्रॉफिट रेशियो लगेगा। अज्यूम्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ऑल डिडक्शंस आर डीम्ड टू बी अलाउड, मतलब ये वाला जो अज्यूम्ड प्रॉफिट गिना ना हमने, ये वाला, इसमें फिर बोनस पेड टू एम्प्लॉइज अलग से माइनस मत करना, TDS डिफॉल्ट वाले एक्सपेंसेस अलग से डिसअलाउ भी मत करना, सारे अलाउंस, सारे डिसअलाउंस हो गए, फाइनल ये 6% या 8% वाला प्रॉफिट, फाइनल अमाउंट टैक्सेबल। डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेपरेटली रिड्यूस्ड फ्रॉम द अज्यूम्ड प्रॉफिट, उसमें से माइनस नहीं कर सकते। पार्टनर्स को सैलरी पे किया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया, वो सब भी डीम्ड के बाय डिडक्शन मिल गया आपको। अगर आप बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट दिखाते हो एंड दैट इज ग्रेटर देन द अज्यूम्ड प्रॉफिट, देन यू पे टैक्स ऑन योर एक्चुअल प्रॉफिट, अज्यूम्ड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, तो फिर ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट कम है बुक्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप अज्यूम्ड प्रॉफिट पे ही टैक्स भर रहे हो, तो आप प्रिजम्पटिव का सेक्शन फॉलो कर रहे हो, आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बोलते हो मैं एक्चुअल पे टैक्स भरना चाहता हूं, मैं क्यों ज्यादा टैक्स भरूं, मेरा प्रॉफिट तो कम आया ना, सेक्शन का 6% 8% से मेरा प्रॉफिट कम आया, ठीक है, तो फिर एक काम कर, बुक्स का ऑडिट भी करवा ले और फिर कम वाले प्रॉफिट पे टैक्स भर दे। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, हाँ डिडक्शन मिल जाएगा, बट वो चैप्टर 6 से पार्ट सी वाले डिडक्शंस एंड ऑफ कोर्स 10AA और वो 80JJAA से लेकर
80 QQB, 80 RRB, वो जो डिडक्शंस है वो डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होने वाले। बाकी 80C, 80D, डोनेशन का 80G, 80 TTA, TTB, वो सब कुछ डिडक्शन मिल जाएगा। लॉसेस सेट ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, करंट ईयर पास्ट ईयर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लॉसेस सेट ऑफ करो। एडवांस टैक्स में भाई सिर्फ एक एडवांस टैक्स भर देना ऑन और बिफोर 15 मार्च, वो 4 के 4 इंस्टॉलमेंट भरने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट पूरा एडवांस टैक्स वन शॉट में भर दो। 44 ADA, नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट फर्म। ऑब्वियसली HUF तो यहां पे कवर नहीं हो सकता। रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट फर्म एक्सक्लूडिंग LLP। पूरे साल में जो ग्रॉस रिसीट आया वो 50 लाख या उससे कम है, लेकिन इफ द अमाउंट्स रिसीव्ड do not exceed 5%, amounts received in cash do not exceed 5% of the total turnover, तो भाई थ्रेशोल्ड 75 लाख लग गया। जैसे इसके पहले के सेक्शन में देयर वर 2 थ्रेशोल्ड्स, 2 करोड़ एंड 3 करोड़, वैसे यहां पर भी सेम है 50 लाख एंड 75 लाख। कैश में जो पैसा मिला वो 5% या उससे कम है तो 75 लाख का थ्रेशोल्ड, फिर 44 ADA लग गया। 75 लाख से ज्यादा तो 44 ADA प्रिजम्पटिव का सेक्शन नहीं लगा। लेकिन अगर कैश में जो मिला वो 5% से ज्यादा है, देन लिमिट इज ओनली 50 लाख। 50 लाख या उससे कम हुआ तो प्रिजम्पटिव का सेक्शन यूज करो, वरना प्रिजम्पटिव का सेक्शन यूज नहीं कर सकते इफ योर ग्रॉस रिसीट आर मोर देन 50 लाख। अज्यूम प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट विच एवर इज हायर। यहां पे अज्यूम प्रॉफिट बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट होता है, 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट। आपने ग्रॉस रिसीट कैश में रिसीव किया या प्रिस्क्राइब मोड, प्रोहिबिटेड मोड, वो कोई भेदभाव, वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। प्रॉफिट रेशियो सीधा सीधा 50%। P&L क्रेडिट साइड में जितना ग्रॉस रिसीट है उसका 50% करो, ये एक्चुअल प्रॉफिट आ गया तुम्हारा। सारे डिडक्शंस आपको डीम्ड अलाउ हो गए। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, एक्चुअल डेप्रिसिएशन कुछ माइनस नहीं कर सकते। पार्टनरशिप फॉर्म अलग से सैलरी एंड इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले सकता। अगर एक्चुअल प्रॉफिट, ये तो सारे रिपीट पॉइंट्स है, एक्चुअल प्रॉफिट अज्यूम्ड से ज्यादा है तो एक्चुअल पे टैक्स आएगा, टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर एक्चुअल प्रॉफिट कम है लेकिन फिर भी आप अज्यूम्ड ज्यादा वाले प्रॉफिट पे टैक्स भरना चाहते हो तो भी टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कम है और आपको कम वाले प्रॉफिट पे टैक्स पे करना है तो भाई टैक्स ऑडिट करवा लो। लॉसेस बिंदास सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। HP का लॉस इस अज्यूम्ड प्रॉफिट के सामने एडजस्ट हो ही सकता है। पुराना बिजनेस का प्रोफेशन का लॉस इसके सामने सेट ऑफ हो सकता है। सारे 80C टू 80U के डिडक्शन अलाउ हो जाएंगे। एडवांस टैक्स भी बस एक लास्ट मार्च वाला ही एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, सारे के सारे एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। प्रिजम्पटिव का लास्ट सेक्शन, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हो, गुड्स कैरेजेस में हो, गुड्स कैरेज ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, देन कंपनी हो, फॉर्म हो, AOP हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, ये सेक्शन सबके लिए है। The number of goods carriages owned throughout the year is less than or equal to 10. पूरे साल में जितने ट्रक्स है आपके पास वो 10 या उससे कम है तो assumed profit या actual profit whichever is higher। अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है? मोटर व्हीकल्स एक्ट के हिसाब से अगर आपका व्हीकल हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल मतलब जिसका वेट 12,000 किलो से ज्यादा है, तो पर टन मतलब पर 1000 kgs 1000 रुपीज पर मंथ इंटू नंबर ऑफ टन्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। अगर मेरे ट्रक का वेट 16,000 kgs है मतलब कि 16,000 टन्स है तो 16,000 kgs है मतलब कि 16 टन्स है, 16 टन्स है तो 16 टन्स पर टन 1000 rupees per month multiplied by number of months for which I was owning the vehicle. If I was owning the vehicle for 12 months तो multiply by 12, if I was owning the vehicle for 8 तो multiply by 8, ये number of months। लेकिन other than heavy goods vehicle मतलब इस vehicle का weight exactly 12,000 kgs या उससे कम है, then महीने का 7,500 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच यू आर द ओनर ऑफ द ट्रक। ये जो नंबर ऑफ मंथ्स आप कैलकुलेट करोगे, ये जो नंबर ऑफ मंथ्स
आप कैलकुलेट करने वाले हो, इस नंबर ऑफ मंथ्स में इफ देर इज एनी पार्ट ऑफ अ मंथ, दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू द फुल मंथ। मतलब अगर हमने एक ट्रक परचेज किया है ऑन 17th ऑफ नवंबर 2024, तो कैलकुलेशन करते वक्त नवंबर मंथ विल बी टेकन एज द फुल मंथ। नवंबर मंथ में डे वाइज कैलकुलेशन नहीं होने वाला। ऑल डिडक्शंस डीम टू बी अलाउड अगेंस्ट दिस अज्यूम्ड प्रॉफिट, अलग से कोई डिडक्शन, कोई एक्सपेंस अलाउड डिसअलाउड नहीं होगा। डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग, अलग से माइनस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस वाले सेक्शन में इन्होंने बोला इंटरेस्ट दैट यू पे टू द पार्टनर्स ऑन द कैपिटल, मतलब अगर आपका एसोसिएट एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो ये अज्यूम्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करो और उस अज्यूम्ड प्रॉफिट में से ये अज्यूम्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करो, उस अज्यूम्ड प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट यू पे टू पार्टनर्स, कितना पे किया एक्चुअल, वो एक्चुअल परसेंटेज या 12%, विच एवर इज लोअर, इसका डिडक्शन ले लो। अब ये डिडक्शन के बाद जो अमाउंट बचती है ना, इसको उस सेक्शन के हिसाब से बुक प्रॉफिट मान लो, 40 क्लॉज बी के हिसाब से। अब उस बुक प्रॉफिट के हिसाब से आपका लिमिट गिनो और उस लिमिट के हिसाब से जो सैलरी का डिडक्शन मिलता है वो सैलरी का डिडक्शन ले लो और फिर ये आपका फाइनल अज्यूम्ड प्रॉफिट माना जाएगा एज पर दिस सेक्शन 44AE। ये जो फाइनल प्रॉफिट आया ना, इस फाइनल प्रॉफिट को फिर आप आपके एक्चुअल प्रॉफिट के साथ कंपेयर करोगे एंड विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। बाकी ये कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो एक्चुअल पे टैक्स भरो, कोई टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट कम है तो आपके पास दो ऑप्शन है, अज्यूम्ड पे टैक्स भर दो, ऑडिट मत करवाओ। लेकिन कम वाले एक्चुअल प्रॉफिट पे टैक्स भरना है तो फिर टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ATC टू ATU डिडक्शंस भी मिल जाएंगे, करंट ईयर और पास्ट ईयर के लॉसेस भी सेट ऑफ कर सकते हो। यहां पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको चारों के चारों इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च सब कुछ पे करना पड़ेगा। चलो तो फाइनली पीजीबीपी एज अ चैप्टर खत्म हुआ। अब जैसे हम हमेशा हर एक चैप्टर के रिवीजन में करते हैं, पीजीबीपी चैप्टर के लिए द वाइट चेक। पीजीबीपी के मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके गाइस, there will be a P&L account and below the P&L account there will be adjustments. You might remember मैंने क्लास में ऐसा सिखाया था आपको, पहले पूरा P&L अकाउंट इंडिपेंडेंटली एनालाइज करो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में से कुछ ना कुछ आइटम्स तो आपको मिल ही जाएंगे जिसको रीड करके योर माइंड विल से दिस इज एड, दिस इज लेस। First independently analyze the P&L account. After you have done that, then and only then go to the adjustments. ये जंपिंग वाला काम मत करना कि P&L पढ़ा, एडजस्टमेंट पढ़ा, वापस P&L में आए, वापस एडजस्टमेंट पढ़ा। Don't do that. First analyze the P&L and then decode the adjustments. Number 2, depreciation ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में होने ही वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जो डेप्रिसिएशन दिया होगा वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होगा। टैक्स का डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेक करो मैन्युफैक्चरर है या नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एसेट अक्वायर किया है आपने तो उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या यूज किया है, सिंगल डे पेमेंट 10,000 के ऊपर है क्या, प्रिस्क्राइब मोड है, प्रोहिबिटेड मोड है, वो चेक करो। एक्सप्लेनेशंस टू 43(1), क्या इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है, क्या सब्सिडी को लेस करना है, क्या साइंटिफिक रिसर्च का एसेट बिजनेस में आ रहा है तो जितना डिडक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं उतना लेस करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो कैपिटलाइज करनी पड़ती है। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स प्रिपेयर करते वक्त वो एक्सप्लेनेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन्स 31 मार्च को ब्लॉक बनाया, क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो उस ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन गिनो। क्वांटिटी 0 बन गई तो उस ब्लॉक पे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आएगा, जो बाय द वे हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। क्वांटिटी अभी भी पॉजिटिव है, वैल्यू नेगेटिव बन गई तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। डेप्रिसिएशन एक एडजस्टमेंट्स में, एक पर्टिकुलर सेक्शन में इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। देन रिमेंबर द स्पेसिफाइड बिजनेस का लिस्ट। स्पेसिफाइड बिजनेस का क्वेश्चन आया 35 AD, तो साथ में रेजिम भी चेक कर लेना
कि भाई कौन से रेजिम में सॉल्व करना है। अगर डिफॉल्ट रेजिम है तो स्पेसिफाइड बिजनेस हुआ, फिर भी 35 AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा और ब्लॉक में डाल के डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। 35 AD का बिजनेस है या नहीं वो भी ढंग से याद रखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस कवर्ड बाय सेक्शन 43B। Any tax duty cess that you pay to government, employer's contribution to recognized funds, bonus and commission to employees, interest on loan, bank, financial institution, NBFC, leave salary, amount paid to Indian Railways या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाला कॉन्सेप्ट। जनरली पीजीबीपी के एक सम में ये 7 में से कोई एक एक्सपेंस होता ही है। रेंट एंड रेट्स इंक्लूड म्यूनिसिपल टैक्सेस, इट इंक्लूड GST, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक लोन का इंटरेस्ट। 43B याद रख लेना, ड्यू डेट वाला कॉन्सेप्ट बराबर से पकड़ लेना। ड्यू डेट तक जितना पे हुआ है उतना ही अलाउ होगा, उसके ऊपर का डिसअलाउ होने वाला है। TDS डिसअलाउंसेस प्लस TDS थ्रेशोल्ड्स प्लस TDS एक्सेप्शन, ये तो अपने पार्ट 2 में ही हमने रिवाइज किया। अगर TDS का डिसअलाउंस हो रहा है क्योंकि TDS डिफॉल्ट हुआ है तो सामने वाला पार्टी कौन है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, वो चेक करो, उसकी वजह से 100% 30% डिसाइड होगा। क्या TDS के सेक्शन के हिसाब से आपको टैक्स डिडक्ट करना भी है या नहीं करना है, थ्रेशोल्ड एक्सीड हुआ या नहीं, एक्सेप्शन में आते हो क्या TDS के, ये सारी चीजें भी चेक करनी पड़ेगी। अगर पेयर इंडिविजुअल HUF हुआ तो पिछले साल के टर्नओवर का इंफॉर्मेशन भी देखना पड़ेगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्लस टैक्स ऑडिट का कॉम्बिनेशन, तो कभी कभी MCQs में दे आस्क यू लाइक दिस, दे विल गिव यू द एंटायर केस सिनेरियो एंड देन देयर विल बी 2 MCQs। व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस if he does not want to get his books audited? If he does not want to get his books audited, अगर उसको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है तो उसको प्रिजम्पटिव के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। तो अज्यूम्ड प्रॉफिट गिनना पड़ेगा, एक्चुअल प्रॉफिट गिनना पड़ेगा, विच एवर इज हायर ढूंढना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने बोला इफ ही डज नॉट गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट और इफ ही डज नॉट वांट टू गेट हिज बुक्स ऑडिटेड, तो ये सोचना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर 7, एसेट यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस एंड फॉर अदर हेड्स ऑल्सो और फॉर पर्सनल पर्पस। मई 2023 का जो कंपलसरी क्वेश्चन आया था ना, उसमें ऐसा था, एक घर का इंफॉर्मेशन दिया था, बोला 1/4 बिजनेस के लिए यूज होता है, बाकी 3/4 में से इतना पर्सनल SOP के लिए यूज होता है, बाकी का LOP के लिए यूज होता है। अब इसमें दिक्कत क्या होगी, म्युनिसिपल टैक्सेस जो है ना हाउस प्रॉपर्टी में भी, ध्यान से सुनना इसको, म्युनिसिपल टैक्सेस ना हाउस प्रॉपर्टी में भी पेड बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, पीजीबीपी में भी पेड बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हाउस प्रॉपर्टी में पेएबल बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, जबकि पीजीबीपी में पेड बेसिस पे डिडक्शन मिलता है अगर बैंक लोन एक्सेट्रा लिया हुआ है। तो आपको तो सिर्फ P&L अकाउंट में म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट दिया होगा और बोला है सब कुछ पेड है या सब कुछ अनपेड है। HP का कैलकुलेशन करते वक्त आपका सोचने का तरीका अलग, पीजीबीपी का कैलकुलेशन करते वक्त सोचने का तरीका अलग, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। पीजीबीपी के सम्स में ना कुछ एडजस्टमेंट्स ना काइंड ऑफ रिपीट होते हैं। P&L के क्रेडिट साइड में IFOS की एक आध इनकम दी होगी, कभी कभी एग्रीकल्चर इनकम दिया होता है। P&L के डेबिट साइड में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डेबिटेड होगा, एक आध पेनल्टी करके डेबिट करके दिया होगा। एडजस्टमेंट्स में एक 43B का एडजस्टमेंट होगा, एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा, एक आध एडजस्टमेंट डिसअलाउंसेस का होगा कि भाई ब्रदर को अनरीजनेबल पेमेंट कर दिया या कैश में पे कर दिया मोर देन 10,000। एक आध एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक ओमिट कर दिया, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया, ये ओमिट करना, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये भी काइंड ऑफ आता है। सो देर आर सम एडजस्टमेंट्स विच आर प्रिटी स्टैंडर्डाइज्ड, तुम काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा इसमें क्या करना है। कुछ सेक्शंस तुम आराम से, अगर तुम ये सारी चीजें याद रखो ना तो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन नंबर्स भी याद रख सकते हो कि पेमेंट बेसिस वाला तो सेक्शन 43B, तो आंसर में 43B लिख सकते हो। डेप्रिसिएशन सेक्शन नंबर बहुत इजीली याद रह जाएगा, सेक्शन नंबर 32। स्पेसिफाइड बिजनेस 35 ADB याद रह जाएगा। सो ऐसे रिपीटेटिव एडजस्टमेंट्स के सेक्शन नंबर भी अगर याद कर लो ना तो आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। If you have a trouble in remembering section numbers, at least repetitive adjustments के section numbers याद कर लो। चलो, तो PGBP chapter gets over with this. Next video we'll meet with revision of another head of income. Till then, happy studying and tata, bye bye.